So we get very clear description of how to process gold, not only gold, but also silver, lead and tin in Arthashastra. Now, why should a document which is about wealth and how a king should lead the kingdom with prosperity and justice should talk about chemistry? This has been what William Ramsay had to say 2000 years later. This has been the truth for a long time. Kautilya realized that for a nation to prosper, material wealth is of equal importance. So he dedicates the whole chapter. Chapter 2 is completely dedicated. There are around 9 or 10 chapters, and the whole of chapter 2 is dedicated for the processing of metals and various aspects of material science. सोना जो है बहुत ही सॉफ्ट मैलिएबल है, उसको आप कठोर बनाना चाहेंगे तो उसमें दूसरे धातुओं का मिश्रण करना आवश्यक है. बट एवरीथिंग हैज गॉट अ लिमिट ऑफ मिक्सिंग. जैसे पानी और तेल मिलता नहीं है, दे बिकम टू कंपोनेंट सिस्टम. वही पानी और नमक मिल जाता है, दैट दे बिकम अ वन कंपोनेंट सिस्टम सैचुरेशन तक. सैचुरेशन के बाद फिर से वो टू कंपोनेंट हो जाएगा. इसी तरह से जब आप धातुओं को पिघलाते हैं तो अपने मन से कोई भी दो धातुओं को मिला नहीं पाएंगे. उनके आपस में मिलने का भी एक विज्ञान है जो हमारे पूर्वज फेस डायग्राम की भाषा में नहीं बोले. ये आधुनिक भाषा है जो हम आज समझते हैं, जो आज हमारे पाठ्यक्रम में है. लेकिन उनके पास ये समझ था कि अगर मुझे सोना और चांदी को मिलाना है तो सोने कितने तापमान तक मुझे पिघलाना होगा, उसको कितने तापमान तक रखना होगा, उसमें कितने मात्रा में मुझे चांदी को मिलाना होगा, अथवा इवन तांबे को मिलाना होगा. This knowledge was there. Otherwise, we would not be having this tradition of making alloys. आज भी अगर यहाँ पे कुछ प्राचीन मंदिरें अभी भी अगर बची हुई हैं तो आप जा करके देख सकते हैं कि उसमें लोहे का धातुओं का उसमें आकृतियां आपको मिलेंगी. और दक्षिण भारत में अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पे तो संभवतः मिलना ही है. जो एक होता है उत्सव मूर्ति, और जो कि धातु से ही बनी जाती है. तो कभी अष्टलोह से बनती है तो कभी पंचलोह से बनती है. तो ये आज और कल बनाया हुआ मूर्ति नहीं है. आज से हजारों सालों से जब एक सभ्यता में ये रहता है तभी ये इसको बनाने में पारंगत पाते हैं लोग. Good morning to one and all. Namaste. It's a pleasure for me to be in this very wonderful university. I've been following the works of this university for quite some time now. In the brief period that it has come into existence, I am sure it has made a very indelible mark, not just in the national but in the international forum as well. Mainly because of the videos and the way you populate the YouTube with some of the most insightful information about our various aspects of our country's past. That said, I am more than happy to be amidst you to address on this ChemFest. And I think this is one of the first universities in the country to give credence to Indian chemistry. When I say Indian chemistry, it's from ancient and medieval time, to have taken up that as a topic for the ChemFest. So I congratulate you for that, and I thank the organizers for having me here. Being a teacher, it's always an occupational hazard to turn every talk to a question. So I start with that question. आप लोग इस स्लाइड्स में बहुत सारे चेहरे को देख रहे हैं. मेरा अनुरोध है, आप में से कौन सारे चेहरों के नाम को सही तरह से बता पाएंगे? अगर ऐसा कोई है तो आप हाथ खड़े कीजिए. I'll be very happy. Okay, this person. How many of you know? Please raise your hand. This is for relatively younger students. I know dignitaries in the front row are much more endowed with information and knowledge, so it's for them. This person, I'm sure everybody would be recognizing. How many of you recognize this person? Raise your hand. Okay, good. This person?
Nope. This guy? No. Okay, if these four have been difficult, I'm sure these four will be equally even more difficult. So let's see who are they. So he is Acharya Prafulla Chandra Rai, Sir C.V. Raman, the one and only Nobel Prize for the work done in India by an Indian, Acharya Jagdish Chandra Bose, Satyendra Nath Bose, and of course he was Meghnath Saha. And these three relatively lesser known names are Kadambini Ganguly, Y. Subba Rao, and very own lady from this state, Anandibai Joshi. Let me start from Joshi. Anandibai Joshi. How many of you have heard her name? Not even one. That's something very surprising, which is a reason why, your university has taken this decision to have this session to look at our past in terms of science and scientists. Okay? So this sets a tone. Had you were proficient in recognizing this, my job would have been redundant. और इसका ये भी एक प्रमाण है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो हमारे ही साइंटिस्ट वैज्ञानिक हमारे यहाँ पे जिस तरह का विज्ञान था, हमारे यहाँ पे जिस तरह के वैज्ञानिक हुए, उनके बारे में आप तक पहुंचाने में सक्षम नहीं रहा. तो इन दो बातों से मैं अपना जो व्याख्यान है वो शुरू करता हूं. और ये सामयिक इसलिए भी है क्योंकि अभी नेशनल एजुकेशन NEP 2020 के अंतर्गत ये बहुत ही जोरों शोर से प्रयास हो रहा है कि कैसे हम अपने ही भारतीयों को उनके ही पूर्वजों के बारे में बताएं. समझ ली, ये इतिहास का एक पाठ्यक्रम नहीं है. इट्स नॉट indulgence in history alone. See, we are in a position where we are not even able to recognize our own heroes, and these are not from very old age. Okay, they are hardly 100 years before. 100 साल पहले वाले हमारे यहाँ पे हुए विज्ञान और वैज्ञानिकों को अगर हम पहचानने में, अगर उनको हम चिन्हित करने में असमर्थ हैं, तो इसका क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं. नेक्स्ट. ये तो रहा विज्ञान और वैज्ञानिक पिछले 100-150 साल वाले पुराने. आप में से कोई ऐसा है जो आज से 1000 साल पहले के कुछ वैज्ञानिकों का नाम बता दें? डॉक्टर उबाले ने एक वैज्ञानिक का नाम बताया था. अगर आपने उनके भाषण को ध्यानपूर्वक सुना होगा तो आप मेरे सवाल का उत्तर दे सकते हैं. कोई है जो आज से 1000 साल, 1500 साल पहले, 2000 साल पहले हमारे भारत के धरोहर में हुए वैज्ञानिकों में से कोई 4 या 5 नाम बता दे? नहीं, कोई नहीं. निस्संकोच बताइए. नागार्जुन, वेरी गुड. वाघभट्ट, ओके, दैट्स इट. ओके, वेरी गुड. गिव अ हैंड ऑफ अप्लॉज टू हिम. और आप ये भी बता सकते हैं कि ये 3 नाम किस विषयों के लिए जाने जाते हैं? और तीसरा नाम जो आपने बोला? ओके, ठीक है, थैंक यू. खैर, सी, दिस कंट्री हैज बीन engaged in intellectual pursuits like any other country from a very very long time. और हमारी सभ्यता इतने हजारों सालों की है कि अगर हम 100 साल पहले वाले चीज़ों को ही अगर हम भूल जा रहे हैं तो ये अनिवार्य बन जाता है कि हमारे पाठ्यक्रम में एक व्यवस्थित रूप से हम हमारे उन वैज्ञानिकों को जो आज से 3000 साल पहले, 4000 साल पहले हमारे यहाँ पे हुए थे. ठीक है, तो इसीलिए इस तरह का एक कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है और मैं आपके सामने खड़े होकर के बोल रहा हूँ. ये था विलियम रामसे का एक बहुत ही फेमस कोट विच आई ऑलवेज लाइक. विलियम रामसे, बाय द वे, वाज द वन हु वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज discovery of noble gases, chemistry of noble gases. See what he has to say. The country which is in advance of the rest of the world in chemistry
will also be foremost in wealth and in general prosperity. और ये उनकी कपोलकल्पित वाक्य नहीं है. This is not something, a figment of imagination arising from his fertile mind. Okay? What data says? This is the data of Nobel Prize awarded in the last, say, 120 years in chemistry. And if you see this, USA, Germany, United Kingdom, they stand in the top. And if you also correlate that with the number of publications in chemistry, that is also led by these three countries, the Western countries. So, indeed, what William Ramsay, जिनका ये कहना था कि जो भी कंट्री रसायन शास्त्र में पारंगत पा लेता है, तो वो आर्थिक उस देश के आर्थिक व्यवस्था भी बहुत ही उत्तम स्थिति में होगा. This is one of the very important paper that had come out आज से 20 साल पहले. लंदन के ब्रिटिश के एक अर्थशास्त्री का एक ये पेपर है, एंगस मैडिसन. He was commissioned to look at the way GDP of the world has changed over the last 2000 years. तो इन्होंने बहुत ही मेहनत लगा करके पूरे विश्व का जो जीडीपी है उसका इन्होंने संशोधन किया. और उनका ये कहना है, ये किसी भारतीय या फिर किसी राइट विंग इकोनॉमिस्ट का साजिश नहीं है, ठीक है, ये ओपिनियन नहीं है. दिस इज हार्ड डेटा. व्हाट इज इट? इफ यू सी दीज टू कलर्स, द येलो कलर एंड द रेड कलर, they are India and China respectively. So for several centuries, the world GDP was led by these two countries. And if you see, in the case of India, there is a steep decline in the first millennium, and there is large decline in the second half of the second millennium. And we all know the reasons why this has happened. Various invasions, various onslaughts on the whole country as such, and your state has been one of the gateways for such invasion. I am referring to Somnath, by the way. So this has been the picture of the change of GDP over the last 2000 years. अब अगर हम ये सवाल पूछें अपने आप से कि अगर हमारा भारत जो पिछले मतलब आज से 1000 साल पहले तक विश्व स्तर में उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही उन्नतम रही है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? एंड इफ यू कोरिलेट दैट विद व्हाट विलियम रैमसे हैड टू से, इट इज द प्रोफिशिएंसी इन केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस. तो जो भारतीय रसायन शास्त्र था वो बहुआयामी था, और उस क्षेत्र में हमारे पूर्वज इतने पारंगत पा चुके थे, तभी विश्व स्तर में उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही उन्नतम रही. ये उसका प्रमाण है. तो रही बात, जब बात आती है भारतीय रसायन शास्त्र की, तो जैसे मैंने कहा ये बहुआयामी है. देयर हैव बीन कंट्रीब्यूशंस इन वेरियस फील्ड्स ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, नेमली अ फ्यू ऑफ देम दैट आई हैव लिस्टेड हियर. दे आर इन दिस फील्ड ऑफ मेटलर्जी, मिनरल्स, गनपाउडर, ceramic, medicine, modern dye pigment, cosmetics and paints. These are just very selective examples that I have given. This is not an exhaustive list. So today I'll give you some of the glimpses from this rich past of Indian chemistry, which encompasses various fields. Now look at these 4 minerals: corundum, sulfur, beryl and beryllium. As a student of chemistry, it has been very disappointing for me that I discover that these words of chemicals which are still used in chemistry have been borrowed or have been inspired from Sanskrit words which I have written down. Kuruvinda, Shulvari, and these come from the word Veluri. Okay. Now when एक भाषा से दूसरे भाषा में जब शब्द का आदान प्रदान होता है, तो उससे क्या प्रतीत होता है कि इन दोनों में समागम है.
और मुख्य रूप से अगर संस्कृत भाषा से वर्तमान विज्ञान में कोई शब्द प्रवेश किया है तो इसका यही तात्पर्य है कि जो वर्तमान विज्ञान इस भाषा और इस सभ्यता में पनप रहे विज्ञान से प्रभावित हुआ है. Today we take pride that Latin and Greek terms are in science. जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी से परिचित होंगे होमो सेपियंस बोलेंगे, राइट? इट कम्स फ्रॉम, इट्स नॉट एन इंग्लिश वर्ड. सो वी टेक प्राइड दैट मेनी अदर टर्मिनोलॉजीज आर इन Latin and Greek because the Western science has been taking pride for the fact that the field of science originated from those places. But neither our textbooks nor our historians ever informed us that there are Sanskrit words directly lifted from Sanskrit to even modern science, today's chemistry as well. An example, few example I have given you is this. So as a student of chemistry, it gives me a sense of pride that, okay, fine, modern science recognizes the contribution of our ancestors so much so that it has directly lifted the words from that lexicon to the current lexicon. Madam Ubale also had referred to this statement, but I'll put it in a complete context. When you talk of chemistry, of course, one of the earliest thing that man has dabbled with, while in terms of processing it, is metals. And as students of chemistry, आप लोगों को ये पता होगा कोई भी मेटल जो है अपने जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में नेचर में नहीं मिलता है सिवाय गोल्ड के. ओनली गोल्ड, दैट टू इन सम रिवर, स्पेशल रिवर्स, we get to see gold present in its native form, that is Au in the zero oxidation state. बाकी जितने भी धातु हैं वो अपने पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ही हमें मिलते हैं. एंड वील हैव टू इन्वेस्ट एनर्जी इन ऑर्डर टू रिड्यूस दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट मेटल and thereby get the pure metal out. So this has been the chemical technologies have evolved how to reduce this oxidation state so that you do not harm the environment. So this is not exclusive to India, but then it is true for all the civilization. But in India there is a small caveat here that comes. आप लोगों ने अपने हिस्ट्री की किताब में पढ़ा होगा कि जब वेस्टर्न आर्कियोलॉजिस्ट कैसे डिफरेंट काल को काल गणना कैसे करते हैं. यू हैड स्टोन एज एंड देन यू हैड कॉपर एज, देन ब्रॉन्ज एज, देन आयरन एज, एंड टुडे व्हाट वी आर इज आइदर अ सिलिकॉन एज और अ गार्बेज. सो डिपेंडिंग ऑन विच पर्सपेक्टिव यू लुक एट इट. बट दिस सीक्वेंस ऑफ टाइमिंग, क्रोनोलॉजी, ये कैसे निर्धारित हुआ? जब पाश्चात्य जमीनों में उत्खनन किया गया था तो दे फाउंड आर्टिफैक्ट्स एंड दे डेटेड इट टू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम. दैट्स हाउ द सीक्वेंस गोes: स्टोन, कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन. But here you see, ma'am referred to this Rigveda, one of the oldest literature. So we come across a verse: Hiranya, Aya, Sisa, Trapu, Shyama and Loha. There are 6 metals explicitly mentioned in this Vedic verse. What do we conclude from here? It has gold in it, it has iron in it, and it has also copper in it. Okay, which means either this verse was composed at a time when both copper and iron have been in use in the public, or our country is not following that chronology what the Western archaeologists have given. तो इस बात से यही 2 निष्कर्ष निकल सकते हैं. Now, why I'm highlighting this in front of you is that a lot of research is awaiting to be unraveled and to be told even to us. Simple thing like dating this particular verse, that itself is a huge debate. ये वर्ष किस काल, इसका काल गणना अभी तक सटीक रूप से नहीं हुआ है. Okay, so much of research points are still waited to be unraveled. Okay. Coming to gold, I'll give you a few examples and instances of gold that have been used. Gold, as you know, भारतीय सभ्यता में ही नहीं बल्कि बाकी अन्य सभ्यताओं में भी जो सोना है वही सबसे पहला धातु था जो मानव उसके उपयोग में लाए गए. मानव अपने उपयोग में सोने को पहले लाए थे. बट वेरी इंटरेस्टिंगली, if you look at the abundance of gold
जिस मात्रा में गोल्ड पाई जाती है वो बहुत ही कम है। यहां पे मैंने एक स्टैटिस्टिक्स दे रखा है, पता नहीं आपको लाइट केस में दिख रहा हो कि नहीं। ऑक्सीजन टेक्स अप 46%, सिलिकॉन 28, and in all these things which are less than 10%, you don't even find gold. ये जो अदर्स 0.2% है उसके अंतर्गत आता है गोल्ड। और ये वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है, दिखाया कि कैसे मतलब गोल्ड किस लेवल पे क्रस्ट के ऊपर तक पाया जाता है। तो कैसे हमारे प्राचीन सभ्यताएं इतने सक्षम रहे कि इतनी कम मात्रा में पाए जाने वाले धातु को भी एक्सट्रैक्ट करके उसको अपने प्रयोग में लाए। Now there was also mention of this Arthashastra in the opening inaugural talk. So this was a specific context. आप लोगों में से कितने लोग अर्थशास्त्र का नाम पहले सुने हैं? Okay, couple of hands. Okay, Arthashastra. Thank you. Arthashastra is celebrated literature, one of the earliest literature which we have in our midst, जो हमारे पास लिखित रूप से मिला है हमें। वरना हमारे यहाँ पे जितने भी ज्ञान के सामग्री हैं वो मौखिक रूप से हमारे पास हम तक पहुंची हैं। लिखित रूप से हमारे यहाँ पे बहुत ही कम सामग्रियां पहुंची हैं। उनमें से एक अर्थशास्त्र जो लिखित रूप में यथावत हमारे पास पहुंची है, बट स्टिल इसकी काल गणना अभी तक सटीक रूप से नहीं हुआ है। It is Arthashastra has not been accurately dated to which century it belongs to. Okay, so that is still a matter of debate. But be that as it may, so we get a very clear description of how to process gold, not only gold but also silver, lead, and tin in Arthashastra. Now, why should a document which is about wealth and how a king should lead the kingdom with prosperity and justice should talk about chemistry? This has been what William Ramsay had to say 2000 years later. This has been the truth for a long time. Kautilya realized that for a nation to prosper, material wealth is of equal importance. So he dedicates the whole chapter. Chapter 2 is completely dedicated. There are around 9 or 10 chapters, and the whole of chapter 2 is dedicated for the processing of metals and various aspects of material science. So you see the importance which our ancestors had given for this field. Now today we understand, आप लोगों में से फेस डायग्राम पढ़े होंगे, यूजी वाले भी पढ़े होंगे या फिर पीजी वाले तो इसको पढ़े ही होंगे। फेस डायग्राम वाटर से शुरू करते हैं, जो टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर में डिफरेंट फेसेस ऑफ वाटर कैसे बनता है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, फिर गैसियस फॉर्म में, और वही कार्बन डाइऑक्साइड में जाएंगे तो सुपर क्रिटिकल फेस कैसे कार्बन डाइऑक्साइड में दिखता है। So that is for a single component. Now if you have a two component system, that is what an alloy is. So there also today we understand it in terms of the phase diagram. But मैं यहाँ पे आपको ये संकेत नहीं कर रहा हूँ कि हमारे पूर्वज फेस डायग्राम को जानते थे, वरना कल को कोई न्यूज़पेपर में छाप देगा कि अर्थशास्त्र में फेस डायग्राम था। ये मेरा कहने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। आज हम उसको इस भाषा में समझते हैं, फेस डायग्राम की भाषा से। बट ये हकीकत में क्या हो रहा है, आपको मिश्र धातु बनाना है। बिकॉज सोना जो है बहुत ही सॉफ्ट मैलिएबल है, उसको आप कठोर बनाना चाहेंगे तो उसमें दूसरे धातुओं का मिश्रण करना आवश्यक है। बट एवरीथिंग हैज गॉट अ लिमिट ऑफ मिक्सिंग। जैसे पानी और तेल मिलता नहीं है, दे बिकम टू कंपोनेंट सिस्टम। वही पानी और नमक मिल जाता है, दैट दे बिकम अ वन कंपोनेंट सिस्टम। सैचुरेशन तक, सैचुरेशन के बाद फिर से वो टू कंपोनेंट हो जाएगा। इसी तरह से जब आप धातुओं को पिघलाते हैं तो अपने मन से कोई भी दो धातुओं को मिला नहीं पाएंगे। उनके आपस में मिलने का भी एक विज्ञान है जो हमारे पूर्वज फेस डायग्राम की भाषा में नहीं बोले। ये आधुनिक भाषा है जो हम आज समझते हैं, जो आज हमारे पाठ्यक्रम में है। लेकिन उनके पास ये समझ था कि अगर मुझे सोना और चांदी को मिलाना है तो सोने कितने तापमान तक मुझे पिघलाना होगा, उसको कितने तापमान तक रखना होगा, उसमें कितने मात्रा में मुझे चांदी को मिलाना होगा।
अथवा इवन तांबे को मिलाना होगा। दिस नॉलेज वॉज देयर, अदरवाइज वी वुड नॉट बी हैविंग दिस ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग अलॉयस। आज भी अगर यहाँ पे कुछ प्राचीन मंदिरें अभी भी अगर बची हुई हैं तो आप जा करके देख सकते हैं कि उसमें लोहे का, धातुओं का उसमें आकृतियां आपको मिलेंगी। और दक्षिण भारत में अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पे तो संभवतः मिलना ही है। जो एक होता है उत्सव मूर्ति, और जो कि धातु से ही बनी जाती है, तो कभी अष्टलोह से बनती है तो कभी पंचलोह से बनती है। तो ये आज और कल बनाया हुआ मूर्ति नहीं है, आज से हजारों सालों से जब एक सभ्यता में ये रहता है तभी ये इसको बनाने में पारंगत पाते हैं लोग। ठीक है, तो लाइकवाइज टू प्रोसेस गोल्ड you had to know precisely when to add and how much to add. Why I'm saying this is, अर्थशास्त्र में उस दूसरे अधिकरण में कौटिल्य ने पूरा एक सब चैप्टर को डेडिकेट किया है ये बताने के लिए कि सोना कितने क्वालिटीज का आपको मार्केट में बेचना अलाउड है। उसने बकायदा रेंज दे रखा है। अगर इसमें इतना मिलावट, इससे मिलावट ज्यादा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। So back then, during Kautilya's time also, whichever time that is, I said that the dating is not yet done for that, but उनके टाइम पे भी जो ये फोर्जरी बोलते हैं ना, जिसको आज भी देखेंगे तो कॉपर में सोने का एक परत चढ़ा करके उसको सोना बोल करके बेच देंगे। ये आज ही नहीं, तब भी था जब ये अर्थशास्त्र लिखा गया था, क्योंकि अर्थशास्त्र में ये बकायदा लिख के आया कि इसको ऐसे वाले फोर्जरी को कैसे हम पहचान सकेंगे। और आज भी अगर आप सुनार के दुकान में जाओगे तो ये सोना वाकई में सोना है या नहीं, कैसे वो पहचानेगा? कोई बता पाएगा? तो आज भी अगर जब हम दुकान में जाएंगे, मान लो बहुत छोटे से कस्बे में एक गली में एक सोने का दुकान है, तो वो भी लेकिन सोना खरा है या ये बेकार वाला सोना है, कैसे पहचानेगा? पहले उसका नाम क्या है उसका? तुम्ही से पूछ रहा हूं। नहीं, वो क्या करता है उस सोने को लेकर के? किस पे घिसता है? पत्थर का नाम क्या है? किसी भी पत्थर पे घिस लेते हैं? नहीं, तो क्या पत्थर का नाम है? उसको बोलते हैं कसौटी। Have you heard this name? I don't know what it is called in Gujarati, but in Hindi it is called कसौटी। ये तब से उसका डिस्क्रिप्शन हमें बकायदा मिलता है, और आज भी ये टेक्नोलॉजी वैसे का वैसे यूज होता है कि आप वो कसौटी के पत्थर लो, उस पर घिसो, और उसका डिस्क्रिप्शन ही मैंने यहाँ पे दे रखा है। और ये जो ऊपर आप देख रहे हो 10, 7, 14, 18, 22, ये सब कैरेट है, जिसको आज हम कैरेट के नाम से बोलते हैं। कौटिल्य ने कैरेट का शब्द का प्रयोग नहीं किया था, वो बोले थे कि कितने प्योरिटी का गोल्ड हमें मिल जाएगा, और वो रंग से भी पता लगाते थे। ये अगर सोने में ज्यादा तांबा मिला हुआ है तो उसका रंग ऐसे होगा, अगर कम चांदी ज्यादा मिला हो तो उसका रंग ऐसा होगा। है तो गोल्ड एंड सिल्वर हैज बीन आवर कंटिन्यूड ऑब्सेशन। बहुत सारी चीजें उसमें, लेकिन मैं आपको ग्लिम्स दे रहा हूं। एक गरुड़ावलोकन यहाँ पे वो चल रहा है, तो मैं थोड़े थोड़े अंश सबका लेकर के आगे बढ़ूंगा। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जहां से मैं आता हूं बनारस, वो बहुत मशहूर है इस काम के लिए, वेयर यू ड्रॉ गोल्ड इनटू वेरी वेरी फाइन थ्रेड, सो फाइन दैट इट्स जस्ट अ माइक्रोमीटर डायमीटर। तो यू ड्रॉ इट इनटू वेरी वेरी फाइन थ्रेड, और जिसको जरी के रूप में आज इट इज गेटिंग अलॉन्ग विद द वीविंग, आप इसको कपड़े की तरह आप इसको बुन सकते हो। Fast forwarding to several centuries, one of the texts which have again come down to us, जो हमारे रसायन शास्त्र के बारे में ज्ञान देता है आज, जिसके बदौलत प्रफुल्ल चंद्र राय ने द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री पार्ट 1 and 2 लिखा था, आज से 100 साल पहले, 110 साल पहले आज उन्होंने लिखा था। वो इस टेक्स्ट पे आधारित था, रसार्णव। लेकिन दुर्भाग्यवश ये किस कालखंड में लिखा गया था ये हमें मालूम नहीं है। एरर बार समझते हो ना सभी लोग? एरर बार, अगर मैं अपना हाइट बोलूं तो इट इज 180 सेंटीमीटर प्लस और माइनस 5 सेंटीमीटर, मतलब 175 से 185 तक हो सकता है।
ठीक है, अगर मैं बोलूं मेरा हाइट 180 सेंटीमीटर प्लस और माइनस 100 सेंटीमीटर, तो ये कुछ सेंस करेगा? मतलब मैं अपना हाइट 80 सेंटीमीटर से लेकर के 280 सेंटीमीटर तक, समझ सकते हो मेरा फिर हाइट में कितना वो वेरिएशन आएगा। तो उसी तरह से हमारे यहाँ पे ऐसे कुछ ग्रंथ हैं, टेक्स्ट्स हैं, जिनमें एरर बार्स जो है 500 ईयर्स का एरर बार है। ठीक है, तो ये 800 से लेकर के इस टेक्स्ट को 600 से लेकर के 1200 तक बोला जाता है। तो 600 ईयर्स, इफ यू टेक इवन एरर बार्स ऑफ 300 है इसमें, 900 प्लस और माइनस 300। तो ये दुनिया के किसी भी सभ्यता में ये दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को नहीं मिलेगा जहां उनके ही प्राचीन ग्रंथों को सटीक रूप से काल नियमित करने में इतने परिश्रम करने होंगे। अभी तक वो हुआ भी नहीं है। So this text contains 18 chapters, talks about different types of chemistries, and it is written in a dialogue form between Bhairava and Bhairavi. And मजे की बात यह कि पहला 3 चैप्टर जो है that defines what should be the character of an ideal chemistry student, what should be the character of an ideal chemistry teacher, सबका विवरण हमें सटीक रूप से पहले 2 चैप्टर्स में मिलते हैं। उसी तरह से एक और बहुत ही बहुप्रख्यात एक ग्रंथ है रसरत्न समुच्चय। एक यहां पे टिप्पणी ये भी करना चाहूंगा, जो शब्द रस है उसके कई अर्थ हैं। एक अर्थ उसका मर्क्यूरी भी है। गुजराती में पता नहीं क्या बोलते होंगे उसको, पारद, पारो, तो वही पारद पारो हिंदी में पारद है। ये सब निकल के आता है संस्कृत के वर्ड वो रस से। But ras has also got various other meaning. Ras also means elixir, essence. Rasa also means aesthetic. So, because why I am saying this is, many of the historians have classified these texts as only under Tantra. Tantra to deal with transmutation of gold, any metal to gold, which is not the case in our country. एक और एग्जाम्पल आपको कैसे केमिस्ट्री स्टूडेंट ये इंटरेस्टिंग लगेगा। ये 3 वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, माक्षिका, विमला और सस्यका। ये 3 हमें अर्थशास्त्र में भी मिलते हैं और उसके 1000 साल के बाद लिखे गए रसार्णव में भी मिलते हैं और रसरत्न समुच्चय में भी मिलते हैं। अब यहां पे आगे देखिएगा कि the wonderful observation was made that all the 3 red products seemed to be identical, tamra or copper. What's actually happening here is you have 3 different ores of copper. वो जो ओर के फॉर्म में है वो विभिन्न, उसका रूप बिल्कुल अलग होगा, उसका कलर बिल्कुल अलग होगा, लेकिन हमारे पूर्वजों को ये मालूम था कि इनको अगर हम प्रोसेस करेंगे, इनको एक विधिवत रूप से पकाएंगे, तो अंत में जो मिलेगा वो कॉपर ही मिलेगा। एंड दिस कैनॉट, ये एक तरह से कपोल कल्पित बात या फिर एक हिट एंड ट्रायल वे में आया हुआ विज्ञान नहीं है। जब तक इसको वो वैज्ञानिक रूप से नहीं पढ़े होंगे तब तक उनको इस बात का ज्ञान बिल्कुल नहीं रहा होगा। तो ये एक भी प्रमाण है कि दे वर रियली नोइंग व्हाट दे वर डूइंग। और इस ग्रंथों में हमें विभिन्न प्रकार के यंत्रों का विवरण मिलता है। कुछ यंत्रों का मैंने पिक्चर यहां पे डाला है। दिस इज डोल यंत्र। Dola yantra, like this is the way it looks. The cross section is like this. You heat it from the bottom and you suspend something, whatever that you want to either hydrolyze or you want to just sublimate. You hang it from the top chamber, and this is done in a closed atmosphere. So this is specifically for hydrolyzing. ठीक है, जैसे ये इन दोनों के बीच में एक परफोरेटेड प्लेट रखा रहेगा, उसके ऊपर आप जो भी मटेरियल को रखना चाहेंगे उसको रख करके नीचे से या तो पानी या तेल, जिस माध्यम से आप उसको रिएक्ट करना चाहोगे उसको रख के उनके वेपर्स जाकर के रिएक्ट करेंगे इनसे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिमिलर यंत्र, पतन यंत्र। पतन यंत्र में इसको आप नीचे में अगर मर्क्यूरी का ओर है उसको हीट करके मर्क्यूरी के वेपर्स को ऊपर कलेक्ट करेंगे। ऊपर से आप पानी भी डाल सकते हो इसमें।
और दिस इज वेरी फेमस दैट इवन टुडे यू कैन फाइंड इट इन केमिस्ट्री लैब, लेकिन ये मिट्टी का नहीं बना होगा, अभी ग्लास का बना होगा. दिस इज डिस्टिलेशन अपैरेटस, टिपिकल डिस्टिलेशन अपैरेटस. और ये जो है आज भी प्रयोग में मिलता है हमें. अगर जहाँ से मैं हूँ वहाँ से बहुत ही निकट है एक और प्लेस कॉल्ड कन्नौज, एंड कन्नौज इज वेरी फेमस फॉर इट्स परफ्यूमरीज. एंड देयर इफ यू स्टिल सी दिस पीपल आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ apparatus that are described in our chemistry text. Another very important metal for which we must be really proud from our past is a processing of zinc. Zinc को गुजराती में क्या बोलते हैं? जसत, राइट? हिंदी में इसको जस्ता, संस्कृत में इसको यशद. या और ज का हमेशा आदान प्रदान होता है, तभी योगी जोगी बन जाता है एक्चुअली कभी कभी. तो यशद, इट इज जशद, बोथ आर एक्चुअली द सेम. जिंक हमारे यहाँ पे सबसे पहली बार कब ये प्रोसेस हुआ था ये पता नहीं है, लेकिन वेस्टर्न साइंटिस्ट का ये मानना है कि 8th सेंचुरी से हमारे यहाँ पे जिंक का प्रोडक्शन हो रहा है. यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, बहुत ही निकट झावर माइंस, उदयपुर बेल्ट, उस जगह में जिंक का प्रोसेसिंग बहुत ही भारी मात्रा में होता था. एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री, जिंक को हैंडल करने में क्या दिक्कत आएगी दूसरे मेटल्स के कंपैरिजन में? कोई बता सकता है? दूसरे मेटल्स के कंपैरिजन में जिंक को प्रोसेस करने में क्यों दिक्कत आती है? एनी आइडिया, एनी गेस? Physical property, its melting point is quite low and its boiling point is also quite low. तो जनरली जब आप ओर से प्रोसेस करके मेटल को लिक्विड फॉर्म में लाते हो, तो वो लिक्विड फॉर्म को जब आप एनील करते हो तो वो सॉलिड में बदलता है. बट इन द केस ऑफ जिंक व्हाट हैपेंस इज द मोमेंट इट टर्न्स टू लिक्विड, इट इमीडिएटली वेपोराइजेस, और उन वेपर्स को फिर कलेक्ट करने में बहुत ही दिक्कत होगी. तो दैट्स वाई दूसरे यूरोप में खासकर जहाँ पे ब्रास और ब्रॉन्ज जहाँ पे मिलता था, ब्रास का वह ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है. ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, एंड ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. तो जिंक का प्रोसेसिंग, जिंक के प्रोसेसिंग के विषय में भारत ही सर्वश्रेष्ठ पहले से ही रहा है, और ये डेटा पूर्वक भी हमें आज जानने को मिलता है. So they used to use what is called a कोष्ठी यंत्र, एंड कोष्ठी यंत्र में दो तरह के इस तरह के घड़े को एक जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता है जिसमें जिंक कलेक्ट होता है, और एक ऊपर वाले घड़े को उल्टा करके उसमें जिंक के ओर को भर दिया जाता है और उसको जमीन के ऊपर रखा जाता है और आग ऊपर से देते हैं, और उसको ऑक्सीडाइज एयर को भी इनलेट करने के लिए एक बेलो होता है. और ये आज भी अगर हम देखेंगे तो रोड के किनारे पे जो भी मेटल स्मिथ पारंपरिक रूप से जो करते आ रहे हैं देखने को मिलेंगे. ये अभी तक विलुप्त नहीं हुआ है, यद्यपि यहाँ पर इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है. तो फ्रॉम द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट हैपेंस इज दैट द जिंक कार्बोनेट व्हिच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म और द प्रेडोमिनेंट फॉर्म ऑफ द ओर, you decarbonize it, you have it zinc oxide, and then you reduce it using the carbon, then it comes out as the pure zinc form. अब मैंने बताया भी था कि प्योर जिंक का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है, तो जैसे ही मेल्ट होगा तो हीट के इफेक्ट से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसीलिए यहाँ पे देखेंगे तो दे हैड एम्प्लॉयड अ वेरी इंजीनियस मेथड कि ऊपर से उसको हीट करो. By the action of gravity, the zinc liquid will come down, and where the temperature is very very low, जमीन के नीचे है वो, और आग हम जमीन के ऊपर से दे रहे हैं, तो definitely there will be a lot of gradient in the temperature, and the zinc vapor will get, pure zinc will get, not escape out in the form of vapor, but will condense down in the bottom pot. और अगले दिन या 2 दिन के बाद जब ये पूरी आग ठंडी हो जाती है तो इसको निकाल करके, ऊपर वाले घड़े को निकाल करके प्योर जिंक को निकालते थे. एंड इसके अवशेष भी उत्खनन में मिले हैं बहुत झावर माइंस के आसपास, और दिस इज अगेन फ्रॉम विज्ञान भारती दैट आई हैव टेकन
for the information of our friend here. और आज भी क्या है कि अगर मैं भारतीय होकर के एक भारतीय को संबोधित कर रहा हूं हमारे ही ज्ञान धरोहर के बारे में, तो आपको उतना जचेगा नहीं. अब यही अगर एक अंग्रेज आ जाएगा और अपने एक्सेंट में बोलेगा कि यू इंडियंस डिड ऑल दिस थिंग्स, तो आपको आपके कान खड़े हो जाएंगे, पूरे ध्यान से आप उसको सुनेंगे. ये आज भी हमारे यहाँ पे ये प्रथा है, दुर्भाग्यवश. तो ये है कि इंटरनेशनल इसका रिकग्निशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल में क्या बोला जा रहा है, many tens of thousands of tons of zinc was produced and earliest dated zinc mines in the world, earliest known zinc center of zinc production. तो ये हमारे लिए वाकई में गर्व का बात है, क्योंकि हमारे ही पूर्वज जो थे जिंक को, ये इत्तेफाक नहीं है कि एक्सीडेंटली वो जिंक को पा गए. जिंक प्रोडक्शन रिक्वायर्स लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, और ये कोई ओवर द नाइट इश्यू वाली बात नहीं है. ये अगर एक सभ्यता में मटेरियल्स को प्रोसेस करने की एक श्रृंखला पहले से नहीं रही होगी, तो ये जिंक को प्रोसेस इस तरह से नहीं कर पाते. ठीक है, तो ये दिस आई वुड लाइक टू रियली इम्प्रेस अपॉन यू दिस ग्रेट अचीवमेंट. उसके बाद अगर हम देखते हैं तो गन पाउडर और सॉल्ट पीटर का एक टिप्पणी मैं यहाँ पे और भी देना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ पे इतिहासकार हुए हैं और जो खासकर विज्ञान के इतिहासकार हुए हैं, वो पता नहीं क्यों किस कारण भारत में अगर कुछ भी चीज़ अच्छा हुआ था पहले, तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते हैं. वो उसका कारण क्या है ये ठीक रूप से बता नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे गेस वर्क कुछ भी हो, वो बोलेंगे कि या तो ये तुक्के में आ गया या फिर ये कहीं और से इसको कॉपी कर लिया गया है. तो ये दिस हैज बीन द एंगेजमेंट ऑफ द हिस्टोरियंस ऑफ साइंस इन आवर कंट्री. और जिंक को भी यहाँ तक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का भी ये मत है कि जिंक का टेक्नोलॉजी हमें चाइना से मिला है. बट 1980s में बहुत सारे रिसर्च के बाद आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को गलत साबित कर दिया गया है. इस मामले में जो गन पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट उसको प्रोसेसिंग का जब बात आता है, तो उसके बारे में भी लिखा गया है कि ये सब हमें चाइना से मिला है. तो ये भी एक्चुअली गलत है. हमारे यहाँ पे गन पाउडर और सॉल्ट पीटर की भी प्रोसेसिंग की पद्धति बहुत पहले से आ रही है. कुछ एविडेंसेस हमें 1400 से मिलते हैं, उसका मैं एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ. और फॉर्मूला टू मेक द गन पाउडर इज डिस्क्राइब्ड इन दिस वर्क कॉल्ड कौतुक चिंतामणि. वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लिटरेचर, हमारे यहाँ पे जब ग्रंथ लिखा जाता था तो कोई ये नहीं बोलता था कि इसको मैं पहली बार कर रहा हूँ, वो हमेशा संग्रहित करते थे. इससे यही तात्पर्य होता है कि उससे पहले भी ये काम हुआ होगा. Then we have one more text called Aksha Bhairava Kalpa, but I'll not get into the details of it now. So, ये देखिए 1940s में जो एक ये हैं तो इंडियन, बट ये न्यूयॉर्क सिटी में काम करते थे. तो वहाँ का ये क्या कहते हैं, the world has believed that gunpowder was Chinese invention. It is certain that the Chinese do not have ancient proofs of this discovery. We believe that the Indian discovery traveled to China along with the Buddhist missionaries, and Europe learned it first from China. तो बहुत सारे ऐसे ज्ञान के विषय में बातें हैं जिनको आज हम उससे अभिमुख हो रहे हैं कि ये चाइना से भारत में नहीं, बल्कि भारत से ये चाइना में गया है, और यूरोप इसको या तो भारत से लिया है या फिर पर्शियन रूट से लिया है या फिर डायरेक्टली इसको चाइना से लिया है. उसका बहुत ही अच्छा उदाहरण गणित से भी है, जो बोलते हैं कि इसको आज भी अगर आप इंटरनेशनल फोरम में देखेंगे तो उसको अरबिक न्यूमरल्स बोलते हैं, उसको 1 2 3 4 को, यद्यपि उसे इंडियन या हिंदू न्यूमरल्स बोलना चाहिए था उसको. और उसी तरह से अलजेब्रा को बोलते हैं ये अलजिब्र है, क्योंकि इसको अगेन पर्शियन को इसका श्रेय दिया जाता है, बट पर्शियंस खुद आगे आकर के बोलते हैं कि इन्होंने इसको इंडिया से सीखा है. बट दैट्स द स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट वी आर डीलिंग विथ. मेथड ऑफ मेकिंग बेस्ट मॉर्टर. मॉर्टर मतलब दो चीजों को आपस में जोड़ के रखना. जैसे अभी अगर इमारत को खड़ा करेंगे तो एक ईंट का लेयर बिछाएंगे, उसके ऊपर एक सीमेंट लगाएंगे. वो सीमेंट टुडे विच इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट और रेत एंड देन वाटर, that मिश्रण is called mortar. We had different ways of making mortar and they could sustain for a very long time. जो हमारे यहाँ के प्राचीन मंदिर हैं,
अधिकांश वो पत्थर से बने होते हैं और उतने भार को सहना, मतलब they had very high mechanical strength and the cantilevers which are supporting them have not collapsed yet. So the use of different types of mortar, और ये इसको कौन पहली बार देखता है, ये धर्मपाल के बुक से मैंने लिया है, और दिस इज एक्सचेंज बिटवीन द जो गोरे लोग यहाँ पे जब शासन कर रहे थे तो उन्होंने देखा और उन्होंने आपस में ये लेटर में इन सब विषयों का आदान प्रदान किया, जिसको संकलित किया हमारे धर्मपाल जी ने, जिसके कारण आज हमें इन सब चीजों के बारे में पता चल रहा है. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आइस, रेफ्रिजरेशन नहीं था, फिर भी हमारे यहाँ पे एक आइस बनाने की प्रक्रिया थी. क्योंकि आइस को हम कब यूज किए ये मेरे पास सटीक ज्ञान नहीं है, लेकिन जब यूरोपियंस आए यहाँ पे तो उनको आइस को वहाँ से इंपोर्ट करने में बहुत दिक्कतें होती थी, क्योंकि उनके बहुत सारे बेवरेजेस के लिए, खाने पीने के लिए आइस की आवश्यकता थी. तो उनको आइस सप्लाई करने के लिए हमारे यहाँ पे इंडियंस ने खुद इंडिजीनियस वे ऑफ मेकिंग आइस को बनाना शुरू किया, जिसका भी रिकॉर्ड हमें यहाँ पे मिलता है. Paper, again, this paper is also a very heated debate whether paper was first invented in China or India, and कुछ लोगों का इसमें मानना है कि ये पेपर भी इंडिया से ही बना है. हो सकता है चाइना में भी समकालीन सेम टाइम में बना होगा, बट ये इंडिया में भी पेपर का एंटिक्विटी बहुत पहले से है. सुवर्णम रजतम ताम्रम तीक्ष्णम वंगम भुजंगमम लोहन तो षड्विदम तच्च यथा पूर्वम तद अक्षयम. हमारे यहाँ पे कंट्री में अभी एक ऐसी विडंबना आ गई है कि कुछ भी अगर संस्कृत में दिखे लोगों को तो उसको लगता है कि ये तो या तो फिर ये पूजा पद्धति वाली बात है या फिर ये कुछ साहित्य के से रिलेटेड चीज़ है, पोयम या प्रोस या कोई लिटरेचर. बट आवर साइंटिफिक लिटरेचर वॉज रिटन इन संस्कृत. यहाँ पे क्या बोला गया है, दे हैव अरेंज्ड द मेटल्स इन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विच टुडे वी अरेंज इट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हम पढ़ते हैं. मेरा ये दावा नहीं है कि आज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब हमारे पूर्वजों को पता था, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट उनको जितने मेटल्स का पता था उसको उन्होंने एक ऑर्डर में अरेंज किया, और वो भी एक आर्बिट्ररी वे में अरेंज नहीं किया, सल्फर के साथ रिएक्टिविटी से. ठीक है, लोहन तो षड्विदम तच्च यथा पूर्वम तद अक्षयम. सल्फर वॉज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द रिएक्टिविटी. तभी आप शुरुआत में देखे ही होंगे, आपने अगर अभी तक दे रहे हैं तो कॉपर का संस्कृत नाम मैंने क्या बोला था पहले स्लाइड में, ताम्र, लेकिन पहले स्लाइड में मैंने ताम्र नहीं लिखा था, उसको मैंने हाईलाइट करके रेड में दिखाया भी था. मतलब आप लोगों ने या तो ध्यान नहीं दिया या फिर आप भूल गए. कॉपर का नाम आता है शुलवारी, सॉरी सल्फर का, कॉपर का नहीं, सल्फर का नाम था शुलवारी. सल्फर का शुल्व अरी, अरी का मतलब तो दुश्मन होता है, और शुल्व मतलब वहां पे सल्फर को रेफर करता, कॉपर को रेफर करता है, बिकॉज कॉपर वॉज रेडिली रिएक्टिंग विद सल्फर एंड सल्फर वॉज टेकन एज अ यूनिट ऑफ रिएक्शन. देखते थे कि सल्फर कितने मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो कॉपर वॉज रेडिली रिएक्टिंग विद सल्फर एंड हेंस सल्फर वॉज टर्म्ड एज शुल्व अरी. कॉपर का एक दूसरा पर्यायवाची नाम था शुल्व. ठीक है, तो बेस्ड ऑन द रिएक्शन विद सल्फर उन्होंने मेटल्स को अरेंज किया. तो ये लीस्ट रिएक्टिव है, उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, टिन एंड लेड. दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दैट दे हैव अरेंज्ड बेस्ड ऑन रिएक्शन विद sulfur. And one glimpse of how they described, qualitatively how they described if some process is complete or not. A pure metal, अगर मान लो आपने ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया है तो कैसे पता चलेगा कि ये प्योर है कि नहीं? Melted in a crucible does not give off sparks, nor bubbles, nor spurts, nor emits any sound, nor shows any line. Why I'm highlighting this is they had qualitative tests to tell you okay whether the process is complete or not. अदरवाइज क्या होगा कि हाँ ये करो ये करो ये करो, मतलब काम समाप्त, पता चला कुछ बना ही नहीं. सो दीज आर ऑल नॉट रिटन इन अ वेरी आर्बिट्ररी वे. ये साबित करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं जहां पे क्वालिटेटिव टेस्ट बताया गया है हर स्टेप के लिए. ठीक है, अभी फिर से क्विज टाइम. ओके, मैं जस्ट पहले 2 लाइन पढ़ूंगा
I would like you to guess what it is talking about. आवर्तमाने कनके पीता तारे सिता प्रभा शुल्वे नीलनिभा तीक्ष्णे कृष्णवर्णा सुरेश्वरी. कुछ भी आपके मन में इसको सुन करके देख करके जो भी थॉट आए वो आप बोलो. I give you 10 seconds time, please. May take a guess. सारे केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो और भी आपको साहस करके गेस करना होगा. नो गेसेस? नो? एटलीस्ट व्हाट इट इज रेफरिंग टू. कुछ तुक्के तो लगा लो, बोलो. सॉरी, गोल्ड की कुछ बात हो रही है. ओके, गुड गुड. या ठीक है. ओके, गुड. Some good guesses. Okay, as a student of chemistry, all of us would have done flame test, right? ये flame test का description है. अब इसको कोई अनुमान लगा सकता है कि ये flame test describe किया जा रहा है? क्या बोल रहा है यहाँ पे? आवर्तमाने कनके पीता. If you introduce the gold to the flame color will change to पीता, yellow. तारे सिता समाप्रभा. Tara is in this case silver. If you introduce that, how the flame color will change. Shulve Neela Nibha, copper, it gives a blue color to the flame. Krishna Varna, Tikshne Krishna Varna, Tikshna is iron. If you introduce iron, how the color of the flame will change to black. तो ये फ्लेम टेस्ट आज भी दुनिया के किसी भी केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो वो होता है वो. और ये पहली बार अगर हमारे ग्रंथ में इसका विवरण है, और मान लो कि आज तक आपको भी नहीं मालूम था, और जब आज से कुछ साल पहले जब मैंने पढ़ा मुझे भी नहीं मालूम था ये. Now, if a student of chemistry is told about this, will this not create a sense of pride in them? आपको गर्व नहीं एहसास होगा? बताइए कि आप ही के पूर्वजों ने कुछ ऐसा साइंटिफिक प्रोसीजर डिस्क्राइब किया था टेस्ट करने के लिए. तो दिस होल पैराग्राफ, all this that I'm quoting here are all flame test for various metals that our ancestors had access to at that point of time. My last slide, and I'll stop with that. This is one of the famous motive. Even if you go to Somnath temple, how many of you have been? This is one of the very famous motive. That is a lion overpowering, an elephant overpowering a lion. But जंगल का राजा कौन है? शेर है. तो यहाँ पे शेर को तो कुचला जा रहा है ना, क्यों? यानी कि शेर अपना प्रभुत्व कैसे स्थापित करता है? हाथी को मारने के बाद ही. और शेर एक हाथी को तभी मार सकता है जब वो पीछे से वार करेगा. सामने से वार करेगा तो हाथी उसको कुचल देगा. अगर शेर जब तक हाथी को पीछे से वार नहीं करेगा तब तक वो हाथी को पराजित नहीं कर पाएगा. और जब तक शेर हाथी को पराजित नहीं करता है तब तक वो जंगल का राजा नहीं कहलाएगा. तो ये दिस इज अ मैटर ऑफ कॉमन नॉलेज. ओके, टुडे भले ही ये लुप्त हो गया हो, हमें गूगल में देखना होगा ये सब चीजें क्या है. बट इमेजिन अ केमिस्ट्री टेक्स्ट रिटन टू कन्वे दिस काइंड ऑफ अ मीनिंग अबाउट इन्वोकिंग our nature which is in our surrounding. क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक ऐसा इसमें डिस्क्रिप्शन आता है, नसो अस्ति लोह मातंगो यन्न गंधक केसरी निहंत्वाद गंधमात्रेण यत्वा माक्षिक केसरी. कोई भी ये वर्ष को देख करके चित्र से संबंध नहीं कर पाएगा. बट एक्चुअली क्या बोला जा रहा है कि ऐसा कोई भी हाथी जैसा धातु या लोहा नहीं है जो शेर नामक गंधक से पराजित ना हो. ओके, सो क्योंकि मैं एनईपी से भी जुड़ा हुआ हूं तो मैं हमेशा ये मेरा प्रयास रहता है कि अगर हम आज केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक को लेंगे तो इट्स रिटन इन अ वेरी वेरी बोरिंग वे. दिस रिएक्ट्स विद दिस रिएक्ट्स विद दिस. बट समझो कि अगर इतने सारे कहानी के साथ अगर कोई रिएक्शन बिटवीन रिएक्टिविटी ऑफ सल्फर के बारे में बात करे और उसको एक छंदबद्ध भी कर दे, तो विल दैट नॉट अपील to our intellect, and will that not be very interesting to read? Okay, so that's just one comment and observation that I had. And
my last slide here. C.V. Raman, as all of you know, got the Nobel Prize. So he was invited into Cambridge by Rutherford. Rutherford is famous for that gold foil experiment, for the discovery of the nucleus, right? Rutherford invites him. C.V. Raman goes to Cambridge. घूम फिर करके रदरफोर्ड के पास आकर के क्या बोलते हैं वो? To me, it seems Cambridge to me is a place for play and not for study. C.V. रामन रदरफोर्ड को देख के बोलते हैं कि कैम्ब्रिज जैसा जगह केवल खेल कूद के लिए है, पढ़ाई के लिए नहीं है. क्योंकि वो रामन ने देखा कि जब वो भ्रमण कर रहे थे उस विश्वविद्यालय का, तो कुछ लोग खेल रहे हैं, कुछ लोग मौज कर रहे हैं, कुछ लोग कारपेंटरी कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ अपने मन का कुछ कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में. पलट के रदरफोर्ड का क्या जवाब आता है कि वी ट्रेन मेन हु कैन गवर्न एम्पायर एंड नॉट मेक बुकवर्म्स. आज हम हमारे विश्वविद्यालय में बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? आर वी इंफॉर्मिंग देम अबाउट द wherewithals of sustaining their life or governing an empire? इस प्रश्न से मैं आपको इसी में I will close my talk here and connect you back to the initial few slides where I had said that today we are in a position where we can't even recognize our own past heroes, our own past science and technology that had flourished in this very land. Okay? It is time for us to come out of that slave mentality and explore our past and feel not only proud but also be equipped so that we can have startup innovation. This ChemFest is for Indic Science for Startup Innovation. There are ample scopes. ये ऐसा फील्ड है इंडियन पास्ट में, केमिस्ट्री के बारे में ही बोल रहा हूँ. ये इंडिक साइंस इतना वास्ट फील्ड है कि इसको अभी तक हमें पता भी नहीं है बहुत सारी चीजें इसमें है क्या. तो नाउ विद द इंटरवेंशन ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग एंड एआई वी कैन डू लॉट्स ऑफ startup innovations to even access our Indic past. With that, I once again thank the organizers and you for your patient listening. Thank you.